न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड आसनसोल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल। 48 घंटे के भीतर सलानपुर युवती हत्या के आरोप में मृतिका के भिक्का भाई गिरफ्तार। मृतिका के पिता ने पुलिस पर जोर जबरदस्ती फंसाने का लगाया आरोप। निर्दोष महाराष्ट्र के पालघर घटना की बंगाल के पुरुलिया में पुनरावृत्ति। गंगा सागर जा रहे साधुओं की भीड़ ने की बेरहमी से पिटाई। बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाए संगीन आरोप। एक मैसेज देने के लिए अगला चुनाव के लिए तैयारी है ममता बनर्जी का। रानीगंज सियारसोल गर्ल्स स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा 2 दिनों से लापता। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। स्कूल से खबर देने सरकारी विभाग द्वारा सरकारी नियमों का उड़ाया जा रहा मजाक। बिना अनुमति के रेलवे द्वारा काटी जा रही पेड़। আপনি কি খুন করেছিলেন? হ্যাঁ করেছি। কেন খুন করলেন? বলে দিয়েছি পুলিশকে বলেছি তো। सलानपुर में युवती की हत्या के मामले में सलानपुर थाने के पुलिस ने 48 घंटे के अंदर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया व्यक्ति मृत युवती के रिश्तेदार है। आरोपी का नाम लालटू चटर्जी है। आरोपी सलानपुर थाना क्षेत्र के बोलकुंडा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। गौरतलब है कि मिट्टू राय का अर्धनग्न शव जंगल में मिला था। इसके बाद रूपनारायणपुर चौकी ओसी मैनुअल हक सलानपुर आईसी अमित हाटी के साथ मिलकर जांच शुरू की। विशेषकर मोबाइल कॉल के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर लिया। वह मृत युवती का रिश्तेदार है। हत्या की घटना को स्वीकार करने के बावजूद पुलिस की शुरुआती धारणा यह है कि संपत्ति के कारण यह हत्या हुई होगी। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति से आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। आज गिरफ्तार व्यक्ति को आसनसोल कोर्ट ले जाया गया। पुलिस जाँच के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेने के लिए आवेदन किया। কিসের জন্য মারলেন আপনি? পুলিশকে বলে দিয়েছি বলছি তো। সম্পত্তি ওখান থেকে জেনে নেবেন পুলিশকে বলে দিয়েছি সব। আপনি কি খুন করেছিলেন? হ্যাঁ করেছি। কেন খুন করলেন? বলে দিয়েছি পুলিশকে বলেছি তো। সম্পর্কে কে হয় কে হয় আপনার ও? সম্পর্কে বোন হয়। কেন মারলেন না? কেন মারলেন আপনি? বললাম তো পুলিশকে সব বলে দিয়েছি। কি দিয়ে মারলেন? টাকার জন্য মেরেছেন কি? আমি পুলিশকে বলে দিয়েছি সব। না কি দিয়ে মারলেন? খুন কি আপনি করেছেন? খুন কি আপনি করেছেন? আমি করেছি পুলিশকে সব বলে দিয়েছি। খুন আপনি করেছেন? পুলিশকে বলে দিয়েছি বললাম তো। কি মদ খেয়ে খুন করেছিলেন? বলছি তো পুলিশকে সব বলে দিয়েছি। কেন খুন করলেন? পুলিশকে বলে দিয়েছি বললাম যে। আপনার মানে তাহলে আপনি খুন করেছিলেন? ছুরি কি অস্ত্র দিয়ে মেরেছিলেন? সব পুলিশকে বলে দিয়েছি। वहीं लालटू चटर्जी के गिरफ्तारी पर मृतिका के पिता से जब पूछा गया तो उन्होंने अलग ही बयान पेश की। उन्होंने कहा कि उनके भिक्का पुत्र को जोर जबरदस्ती पुलिस द्वारा फंसाया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या आरोप लगाया। আমি বলতে চাই যে আমার যে ভিক্ষা ছেলে সে হচ্ছে খুব নির্দোষ ব্যক্তি। সে একবার নির্দোষ, সেই কেসের সঙ্গে কোনো ইনভলভ নয়। কেন যদি খুন করে তাহলে সে আমার বাড়িতে ডেলি আসছে। মঙ্গলবার থেকে মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার প্রতিদিন আমার বাড়িতে আসে। প্রতিদিন আমার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে নিজের বাড়িতে যাই ছেলেটা। তাহলে কি পুলিশ প্রেসার দিয়ে একবারে প্রেসার দিয়ে আমার বৌমা গেছিল কালকে। বৌমা আমাকে বললো ভিক্ষা বাবা ঠেঙা বেড়া খুব করেছে। হ্যাঁ পুলিশ তাহলে পুলিশের চাপে ও স্বীকার একেবারে পুলিশের চাপে। মানে ও নির্দোষ? হ্যাঁ নির্দোষ। আপনি ওর হয়ে কোর্টে যাবেন বলছেন? একেবারে কোর্টে দরকার হলে নির্দোষ কোর্টে যে প্রমাণ করবো দাঁড়ান থেকে। আমার স্ত্রীও আছে। তাহলে ও যে বলছে যে আমি খুন করেছি বলছে, কেউ জোর করে যদি আমাকে ঠেঙায়, আমাকে যদি 5 জন মিলে ঠেঙায় থানার ভিতরে, আমাকে তখন মেরে ভয় আমাকে লিখতে বাধ্য। তাহলে কি আসল খুনিকে আসল খুনিকে ওরা ধরছে না, আড়াল করে দিয়েছে পুলিশ? একেবারে পুলিশ আড়াল করছে আসল খুনিকে। আপনার ছেলের নামে যেটা ভিক্ষা ছেলের নামে তাহলে ফাঁসানো হচ্ছে? একেবারে ফাঁসানো। ওকে মানে আমার ভিক্ষা ছেলে আমার বিষয় সম্পত্তি যা কিছু দেখাশোনা করে, যা কিছু দেখাশোনা করে তাতে হয়তো কিছু মানুষের গ্রাজিং হতে পারে, তা বলে দিচ্ছি। তাতে এমন গ্রাজিং হচ্ছে যে ছেলেটা যখন দাঁড়াচ্ছি এসি তখন তাদের অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, বুঝলেন তো? তারা কি আপনার পরিবারে যারা? হ্যাঁ গায়ের ভিতরেই বটে, পাহাড় গ্রামের ভিতরে কে কেউ হতে পারে। आसनसोल उत्तर के विधायक तथा राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलय घटक आज आसनसोल के रेल पार इलाके में स्थित हाजी कदम रसूल स्कूल पहुंचे। वहां पर उन्होंने नवनिर्मित स्कूल भवन का उद्घाटन किया।
इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीम उल हक, पार्षद फंसबी आलिया सहित इस स्कूल के तमाम शिक्षक और रेल पार के अन्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर मलय घटक ने कहा कि रेल पार में हाजी कदम रसूल स्कूल और रहमानिया या दो बड़े स्कूल है जहां पर रेल पार के ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन रेल पार की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए स्कूल भवन में जगह कम पड़ रही थी, इसलिए आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण को बोलकर यहां पर एक जमीन का इंतजाम कराया गया था। लेकिन देखा गया कि इस जमीन पर खेलने का मैदान है तथा यहां पर रेल पार में कई कार्यक्रम भी होते हैं, इसलिए आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण से ही अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा जो जमीन उपलब्ध कराई गई है उसके बगल में एक और जमीन है जिसे उपलब्ध कराया जाए और उस पर स्कूल बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि रेल पार के ही कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर यह स्कूल बने। अदालत में मामला भी दर्ज कराया गया, लेकिन आखिरकार वह सफल नहीं हुए और आज इस स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह स्कूल रेल पार के लोगों के लिए बहुत बड़ा शिक्षण केंद्र बनकर उभरेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह खुद विधायक फंड से 10 लाख रुपए उपलब्ध कराएंगे ताकि इस स्कूल की दूसरी मंजिल का निर्माण किया जा सके। आप लोग को मालूम होना चाहिए ये स्कूल नहीं बने, इसलिए बहुत कोशिश किया। पहले बोला गिर जाएगा, फिर बोला ये प्लॉट नंबर अलग है, हाई कोर्ट तक मामला हुआ, लेकिन स्कूल बना। और स्कूल बनने के बाद जो जमीन इतना नीचा है, लड़का बच्चा लोग को तकलीफ हो सकता, तो स्कूल का तरफ से बोला था ग्रिल से बरामदा को घेर देने के लिए, उसका भी बंदोबस्त हुआ, तो हम लोग स्कूल को चालू करने से करें। और ये स्कूल अगला दिन रेल पार के लिए, रेल पार का लड़का बच्चा जो लोग पढ़ेंगे यहाँ, उन लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा काम ये होगा। आप लोग अगला दिन इसको देखते जाइए। एक और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारी चल रही है। इसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल पुरुलिया में उत्तर प्रदेश के 3 साधुओं को निर्वस्त्र कर लाठी डंडों से पिटाई करने से भाजपा ममता सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। वहीं इस घटना के कारण पूरे देश में पश्चिम बंगाल सरकार की किरकिरी हो रही है। साधुओं को पिटाई से भाजपा ने फर्जी लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है, वहीं असली दोषियों को छोड़ दिया गया है। घायल साधुओं को पुरुलिया के भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने बचाकर अपने आवास ले जाकर अच्छे से देखभाल कर उनके इलाके के मंदिर में हिंदू समाज द्वारा सम्मानित करने के बाद साधुओं को झारखंड के धनबाद लेकर पहुंच गए, जहां से वह उन साधुओं को गंगा सागर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने तृणमूल सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि हिंदू समाज को डराने और धमकाने के लिए साधुओं की पिटाई की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि भाजपा सांसद ने जानकारी मिलने के बाद रात को तकरीबन 10 बजे अपने घर से 40 किलोमीटर दूर आकर पुरुलिया के काशीपुर से घायल साधुओं को बचाया। साधुओं को अपने आवास ले गए। खड़े हो गए, उन्होंने गाड़ी के लिए रोका और कहा कि आप 2 मिनट रुकिए, हम आप पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है और आपको कुछ दान दक्षिणा देगा। ठीक है। इतने में ही वो अपनी मोबाइल को निकालकर और अपनी भाषा में बात करने लगे। हम भाषा नहीं समझ पा रहे। इतने भी 4-6 लेडीजें खड़ी हो गई, 4-6-10 आदमी इकट्ठे हो गए, फिर 50 आदमी इकट्ठा हो गया। हम लोग धक्का मुक्की करने के बाद में फिर मारपीट शुरू कर दी। पूछा गया कुछ नहीं और ना हम हाथ भी जोड़ते रहे, लेकिन मारपीट करने के बाद में फिर गाड़ी को भी तोड़ कर दिया और पुलिस गई, हमको थाने ले आई। थाने में पुलिस का व्यवहार कैसा था आप लोगों के प्रति? ठीक ही था, पुलिस का व्यवहार वहाँ ठीक था। जो लोग मारपीट कर रहे थे कुछ आरोप भी लगा रहे थे? आरोप यही लगा रहे थे कि आप लोग औरतों को पकड़ रहे हैं। औरतों को पकड़ने के बाद में फिर हम और ज़्यादा भयभीत हो गए। तो जो लोग मारपीट कर रहे थे वो लोग किस समाज के लोग थे? कुछ समझ में आ रहा था? हम कुछ नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ में आया। आप कहाँ जा रहे थे और कहाँ पे हुआ? गंगा सागर। कब हुआ? सर गंगा सागर। घटना कब की है? 11 तारीख की है। करो तो नंगा करके मार खिलाता है और
उसके बाद थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है। इसमें सीधा सीधा बात है, ममता बनर्जी का यही मकसद था, तृणमूल कांग्रेस का यही मकसद था, विशेष एक वोट बैंक को मैसेज देने के लिए कि भाई देखो हिंदू समाज के लोगों को हम मार के एकदम पूरा ठंडा कर देंगे, पहले जैसा ही हम, मेरा कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसा एक मैसेज देने के लिए अगला चुनाव के लिए तैयारी है ममता बनर्जी का। और इसके चलते आज देखे भी होंगे कि 24 घंटा तक कोई कार्रवाई नहीं था। मैं जब कल रेस्क्यू किया इन लोगों को, जब उठा के लेके आ रहा था उस टाइम, उसके बाद कुछ 2-4 जन बेगुनाह को अरेस्ट किया है और जो सही जो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन लोगों को कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। और जो धारा अभी भी दिया है, मुझे मेरे पास आया नहीं है अभी एफआईआर को भी, लेकिन मुझे जब पता चला इसमें ऐसा सेक्शन दिया है जैसे बेलेबल सेक्शन हो, उन लोगों को तुरंत रिहाई भी हो जाए। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। এখন দিদিমণি বলছে ফোন নাম্বার নতুন দিতে পারতো, তবে আদৌ দিত নতুন নাই। যাতে এর আছে শুনুন। रानीगंज सियारसोल गर्ल्स हाई स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र के रहस्यमय ढंग से गायब होने के विरोध में आज अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा किया। 10वीं की छात्रा बीते 11 जनवरी को पेट दर्द की बात कहकर स्कूल से गायब हो गई थी, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चल पाया। अभिभावकों ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया तथा स्कूल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। हंगामे की खबर पाकर पुलिस पहुंची और जांच का आश्वासन दिया। সকাল যখন স্কুলে এসেছিল, স্কুল থেকে এসে বোধহয় দুপুরবেলা বলেছিল যে মানে কোন ক্লাসে পড়ে আপনার মেয়ে? 10। আচ্ছা, তো তারপরে ওই 12:30টার সময় হেড দিকে এসেছিল, পেটে ব্যথা পড়েছিল, যে বলছে সে নিয়ে চিঠি লিখতে বলেছিল, চিঠি জমা দিয়েছে হয়তো, তারপরে স্কুল মানে এটা স্কুল বলছে নাকি? না, এটা আমি মানে এটা স্কুলে পেটে ব্যথা কে বললো? ওটা আমরা বান্ধবীর কাছে গেছি, আমার বান্ধবী যে পড়াশোনা করে ওই বান্ধবী আমাকে ওটা বলেছিল। বান্ধবীর কথা শুনে তারপর আমরা এখানে কাজ করছি। বান্ধবীটা আমার সঙ্গে থাকে, বান্ধবী বলছিল যে পেটে ব্যথা বলে চিঠি লিখে বোধহয় স্কুল থেকে চলে গেছে। স্কুল পক্ষে তো কোনো চিঠি পেটে কোনো ইয়ে করে না বলছে। আপনাদের কোনো কিছু খবর দেয়নি? স্কুল থেকে কোনো খবর দেয়নি, স্কুল থেকে কোনো খবর নেই। আমি
3টের সময় দাঁড়াইছিলাম দুয়ারে যে আজ অন স্কুল যাচ্ছে, স্কুল ছুটে 3:20 হয়ে গেল, 3:30 বলে সব মেয়ে চলে গেল, আমার মেয়ে নাই। স্কুলে এসে আমি গোটায় খোঁজাখুঁজি করলাম, স্কুলও নাই। তারপর থেকে মাথা খারাপ হয়ে দিকে ঘোরাঘুরি করলাম, ওটা ফেলেদের জন্য এটা গেছে, তাছাড়া কোনো জানো স্কুল থেকে কোনো খবর দেয়নি আমাকে। আর আমি সবজি বিক্রি করে কোনো রকম সংসার চালাই, আমি খুবই গরিব মানুষ। 11 তারিখ ছিল, আনুমানিক ওই 12টা 15 কি 20 হবে। একটি মেয়ে ক্লাস 10 আমার কাছে এসে জানায় যে তার শরীর খারাপ। আমি জিজ্ঞাসা করি কি হচ্ছে, ও জানায় পেটে ব্যথা করছে। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি পিরিয়ডসের পেটে ব্যথা, তো বলে হ্যাঁ। আমি তখন জানাই যে যাও মমতাদির কাছে ওষুধ আছে, 2 ফোঁটা ওষুধ খেয়ে নাও, দেখো 10 মিনিট পর ঠিক হয়ে যাবে। তো মেয়েটি জানায় যে না দিদি আমি এখানে ওষুধ খাবো না, আমার বাড়িতে ওষুধ আছে, বাড়ি গিয়ে ওষুধ খাবো। তুমি বাড়ি যাবে? কোথায় বাড়ি এটাও জিজ্ঞাসা করি। তো বলে শিয়ারশোলে বাড়ি। শিয়ারশোলে বাড়ি বললাম ঠিক আছে, তাহলে তুমি যদি বাড়ি যাবে তো যা একটা অ্যাপ্লিকেশন লেখো, নিয়ে তোমাদের ক্লাস টিচার শতাব্দী শুক্লাদি বলতে যাচ্ছিলাম, তারপরে মনে পড়লো শুক্লাদি আজ নেই, তো শতাব্দীদির কাছে যাও, শতাব্দীদিকে অ্যাপ্লিকেশনটা দাও, উনি তোমার বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে মেয়েটি চলে যায়। তারপরে আমি কাজ করছিলাম এখানে, কিছু সময় তো লেখালেখি করছিলাম কিছুক্ষণ পর মেয়েটি আসে, এসে বলে যে দি অ্যাপ্লিকেশন লিখে নিয়ে এসেছি, অ্যাপ্লিকেশন এনেছি। তো আমি যাও তাহলে শতাব্দীর কাছে যাও, শতাব্দীকে দাও, দেখো শতাব্দী কী বলেন। মেয়েটি চলে যায়। মেয়েটি নিশ্চয়ই এদিকে গিয়েছিল, আমি কিন্তু সেটা দেখিনি, কিন্তু যেহেতু আমি কাজের মধ্যে ছিলাম। তো তারপরে 12:30 পৌনে 1 নাগাদ আমি বেরিয়ে যাই। তো তারপরে মেয়েটির মা যে ছিলেন কিছুক্ষণ আগে, উনি কান্নাকাটি করতে থাকেন, দিদি আমাকে ফোন করেননি কেন। তো আমি বললাম দেখুন দাঁড়ান আমাকে বলতে দিন কী হয়েছে ব্যাপারটা। ফোন করিনি, কারণ আমি ওকে বলেছিলাম যে ক্লাস টিচারের কাছে যেতে, ক্লাস টিচার তোমাকে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। তো এই পর্যন্ত ওনাদের সাথে আমার কথাবার্তা হয়, এবং আমি রামুকে জানাই যে আমি তোমার এখানে বাড়ি, বা ও যদি বলতো আমার সামনে বাড়ি তাহলে তো আমি জানাই যে ঠিক আছে তোমার তো এই সামনে বাড়ি, আমি তোমার মাকে ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু আমি জানতাম না তোমাদের মেয়ে, ওই মেয়েটি দিদি কিন্তু ব্যবস্থা করবেন বাড়ি পাঠানো তোমার। এই কথাবার্তা সেদিন হয়েছে, আর ওনাদের সামনেও স্যার আমি এই কথাই বলেছি। হয়তো স্যার এর মধ্যে কোনো ফাঁক ফোকর থেকে গিয়েছে, না হলে মেয়েটি বেরিয়ে গেছে কখন দিদিরাও খেয়াল করেননি। আর যেহেতু সেদিন ক্লাস 9-এর অ্যাডমিশন ছিল, অনেক গার্জিয়ান আসা যাওয়া করছিল। आरोग्य न्यूरो क्लिनिक की ओर से दुर्गापुर के सिटी सेंटर में सृजनी थिएटर में न्यूरोलॉजिस्ट जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए आयोजित किया गया जो ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा अभ्यास और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में दुर्गापुर, बर्दवान, बांकुड़ा, रानीगंज, आसनसोल से चिकित्सा का अभ्यास करने वाले कुल 250 लोगों ने भाग लिया। स्ट्रोक, मिर्गी, सिरदर्द, तांत्रिका संबंधी रोगों पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासनिक मंडल के सदस्य धर्मेंद्र यादव, राखी तिवारी और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त नेपाली हिंदी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर कालिमुल हक भी उपस्थित थे। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन आरोग्य न्यूरो क्लिनिक के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण यादव ने किया। এটা একটা ফ্রি প্রোগ্রাম, এখানে আমরা কোনো রেজিস্ট্রেশন ফিস নিচ্ছি না। আর সবাই যতজন এসেছে সবাইকে আমরা 4টা টক আজকে অ্যারেঞ্জ করেছি, যেটা প্রাইমারলি আপনার নিউরোলজি রিলেটেড ডিসঅর্ডার্স, যেটাতে স্ট্রোক, মির্গি, মাথা ব্যথা, নার্ভের রোগ, তার সম্বন্ধিত আমি কথা বলব। আর আমার কলিগস আছে ডক্টর গন্টায়েত, ডক্টর সুদর্শনা, ডক্টর শ্যামলী, এনারা আপনার সাইকিয়াট্রিক ইলনেস, মেন্টাল ইলনেস আর ফিজিওথেরাপি এর জন্য এর রিলেটেড টক আর ডিসকাশন করব। আর এটাতে আমরা সব প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্টস, মানে কোন পেশেন্টকে রেফার করতে হয়, বা কোন পেশেন্টের খুব সিরিয়াস রোগ আছে, বা কার সিটি স্ক্যান আর্জেন্ট দরকার আছে, কাকে ওনারা ট্রিট করতে পারেন, কাকে ট্রিট করা যাবে না, এগুলো সব আমরা বোঝাবো। कोलकाता में धूम मचाने के बाद अब आसनसोल में मचेगा धूम, क्योंकि लौट आया इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर। पोलो ग्राउंड में 5 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा 15 देशों और 25 देशों के स्टॉलों में खरीदारी का उत्सव। 1.5 लाख से भी अधिक प्रोडक्ट्स, घर की हर जरूरत से लेकर आकर्षक परिधानों का खजाना, बांग्लादेशी साड़ी से लेकर यूपी की जबरदस्त कारीगरी वाली कालीन, अफगानी ड्राई फ्रूट से लेकर टर्की के सजावटी लाइटें। खरीदारी के बाद ले जबरदस्त व्यंजनों का स्वाद। इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है,
प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अपना घर का सपना देखने वाले के लिए एसपी ब्रदर्स एंड कंपनी और एपीसी इंफ्रा लेकर आए हैं वृंदावन रेसिडेंसी। आसनसोल जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर हाईवे से सटा हुआ टाउनशिप, एडीडीए से एनओसी, बंगलों के साथ ही शोरूम एवं ऑफिस के लिए कमर्शियल स्पेस, सभी सुविधाओं से संपन्न वृंदावन रेसिडेंसी। बच्चों के लिए गार्डन भी। तो जल्द रजिस्ट्रेशन और प्लॉट विजिट के लिए संपर्क करें 7797115599। वृंदावन रेसिडेंसी, NH2, शामडी मोड़, इथोरा, आसनसोल। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। यहाँ मिले 4 उल्लू देख पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। के साथ मेरी मन्नू, तो जी मेरे लिए तो हो गई मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो धुम चिक पक धुम लुट पुट गया। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। सलानपुर रेलवे स्टेशन पर वन विभाग की अनुमति के बिना खुलेआम पेड़ों की कटाई का आरोप लगा है। सलानपुर थाने से महज कुछ ही दूरी पर सलानपुर रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में रेलवे के जमीन पर रूपनारायणपुर वन विभाग की अनुमति के बिना खुलेआम पेड़ों की कटाई की जा रही है। खबर पाकर वन विभाग के अधिकारी और गोरंडी बीट अधिकारी पहुंचे। सलानपुर स्टेशन मास्टर मोहम्मद इरफान अंसारी से पेड़ काटने का परमिट मांगा तो वे नहीं दिखा सके। साथ ही पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वन विभाग के बीट अधिकारी सुमन दास ने बताया कि सूचना मिलने पर उन्होंने देखा कि 4 पेड़ काटे गए हैं, उन पर सरकारी नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। স্টেশনের দেয়ালের সাইডে 2-3টে এরকম গাছ কাটা হয়েছে, সরু সরু গাছ কাটা হয়েছে আর 2-1টা গাছের ডাল কাটা হয়েছে। এটা কি কোনো অনুমতি রয়েছিল? এটা বাবুকে আমাদের অফিস উদ্যম কর্তৃপক্ষ জানতে হবে অনুমতি আছে কিনা, আমি তো বলতে পারছি না। আপনারা এসে কি দেখলেন? এখানে এসে দেখলাম কোথায়, কোন জায়গায় এসে দেখলেন? সালানপুর স্টেশন পাশে একটা জায়গা, স্টেশন এলাকা, যাই হোক সালানপুর স্টেশনই হবে এটা। छाटने के लिए दिए थे, बाकी तो हम लोग देख रहे हैं। तो सर इसको कौन देखेगा, ये किसके अंदर में आता है, कौन ये आपका स्टेशन है सर? आप IOW के अंदर आता है। IOW का कोई हम लोग कल जैसे मान लीजिए ये खराब हो गया, ये मेरे अंदर है, लेकिन इसको हम मेरे ठीक करने से नहीं होगा। तो कोई लिखित शिकायत आप लोग दिए थे क्या IOW को कि पेड़ प्लेटफॉर्म काटने के लिए नहीं, मतलब उसको टहनी को काटने के लिए दिए। आप लिखित शिकायत दिए? कोई पब्लिक के द्वारा कोई लिखित शिकायत? मेरा जो है प्लेटफॉर्म में ऑब्जर्व कर रहा था, लाइट उट जितना है उसको ऑब्जेक्टेड कर रहा था, उसको हटाने के लिए हम दिए। प्लीज स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के अवसर पर आज भी चांदा इलाके में स्थित नॉर्थ पॉइंट स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम में राज्य के मंत्री मलय घटक, आसनसोल रामकृष्ण मिशन के महाराज स्वामी सोमत्वानंद जी महाराज सहित आसनसोल नगर निगम के कई पार्षद और अन्य विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके कार्यों को लेकर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जहाँ मंत्री मलय घटक ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आज की युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल के कर्णधार सचिन राय और उनकी पूरी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है वह सराहनीय है।
true birth anniversary of Swami Vivekananda. We, the people of West Bengal, we all know about Swamiji. Swamiji died at the age of 39 only. So within 39 years of lifespan, those who are American, those who are British or other origin, from other origin, they started their lecture as ladies and gentlemen. But Swamiji started his lecture saying, "My brothers and sisters of America," and the entire people of America appreciated Swamiji's lecture, and that lecture is still, you can buy it. It is printed as a book. So I convey my thanks to the institution. इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए सचिन राय ने कहा कि 24 वर्ष से स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल के 10 ऐसे विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने खेलकूद सहित विभिन्न विभागों में राष्ट्रीय स्तर पर ढेरों इनाम जीते हैं। আজকে আমাদের প্রত্যেক বছরই ওটা হয়, প্রায় 24 বছর ধরে এটা চলছে। আমাদের বিবেকানন্দের বার্থডেতে আমরা সেলিব্রেশন করি এবং ওটা ইউথ ডে, জানেন বিবেকানন্দ বার্থডে এবং ইউথ ডে, ন্যাশনাল ইউথ ডে। তো তার জন্য ইউথরা দেশের ভবিষ্যৎ, সেই ইউথদের যাতে সঠিক শিক্ষা দিতে পারে। এবং স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন শুধু পড়াশোনা করলে হবে না, প্রকৃত মানুষ হতে হবে। প্রকৃত মানুষ হতে গেলে তার এক্সট্রা ক্যারিকুলার যেগুলো, তাদেরকে সমাজের দায়বদ্ধতা, সেটাও তাদের শেখাতে হবে। এবং এই জন্য আমরা এক্সট্রা ক্যারিকুলার যেগুলো আছে, খেলাধুলা, আমাদের এবার মানে 10খানা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে। তারপরে সুইমিংয়ে স্টেট লেভেলে ফার্স্ট হয়েছে, ফুটবলে সাব ডিভিশন সেকেন্ড হয়েছে। এইভাবে এক্সট্রা ক্যারিকুলারগুলো আমরা বাড়াচ্ছি, যাতে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই এক্সট্রা ক্যারিকুলারগুলো যদি করে তাহলে সে প্রকৃত মানুষ হবে। शुक्रवार के दिन पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक पहुंचे बानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जसवंत सिंह, सचिव रंजीत सिंह धाई, उप सचिव सुखबीर सिंह ने गुलदस्ता एवं शॉल ओढ़ाकर मंत्री मलय घटक का किया स्वागत। आने वाले 13 तारीख से लेकर बानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से प्रभात फेरी अर्थात भोर के समय गुरुबानी भजन कीर्तन का आयोजन का कार्यक्रम तय हुआ है और 13 तारीख से यह लागू होगा। इसके साथ साथ 19 तारीख को इसकी समाप्ति होगी। उसके बाद अखंड पाठ रखा जाएगा। गुरुद्वारा प्रांगण में 21 तारीख को गुरु गोविंद जी के प्रकाश दिहाड़ा अर्थात गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में बड़े रूप में आसनसोल शिल्पांचल के विभिन्न जगहों में सिख समुदाय के लोग यहां पहुंचेंगे। विशेष तौर पर पंजाब अमृतसर से गुरुबाणी कीर्तन एवं प्रचारक इसमें हिस्सा लेंगे। मंत्री मलय घटक ने कहा कि आप सभी जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जयंती का पालन करते हैं आप कीजिए, हम लोगों का पूरा आपका सहयोग करेंगे। प्रशासन की तरफ से जो भी जरूरत होगी आपको मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ साथ आप लोग सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले। इस कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के पार्षद गुरमीत सिंह, आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अमरजीत सिंह भरारा, आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सह जगत सुधार बेनाचत्ती के प्रधान तजिंदर सिंह, परवेलिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मलकीत सिंह, चिनाकुड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सोहन सिंह, सचिव गुरविंदर सिंह के अलावा अन्य गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य गण भी मौजूद थे। आज आए थे तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तरफ से हमको 21 तारीख को निमंत्रण दिया। हर साल का माफिक जरूर आएंगे और मैं शिल्पांचल वासी से निवेदन करता हूँ आप लोग भी आइए, बहुत अच्छा से यह पर्व मनाया जाता है। आने वाली 21 जनवरी को यहाँ बनपुर गुरुद्वारे में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा भी उसका भी आयोजन किया गया है। आप सभी ने हमारे पंथ के जो विद्वान प्रचारक हैं अमृतसर से, हमारे स्वर्ण मंदिर से, उनके आगमन से, उनके द्वारा हमारी गुरबाणी का जो खुलासा होगा, जो उन्होंने हमारे धर्म का प्रचार और प्रसार करना, उस सब में भाग लेकर के गुरु साहब का प्रसाद के तौर पे बाणी और यहाँ का लंगर चख करके आप सभी ने अपने अपने धर्म को, अपने जीवन को सफल करने की कोशिश करनी है। यही आप सभी से निवेदन है।
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड आसनसोल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल।